ओके, सो नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी के हिसाब से क्या क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए, लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड. मॉड्यूल रखना. अच्छा, इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव NRC. So is it mandatory to have NRC? It is mandatory to have NRC. मतलब ऑडिट कमेटी तो मैं समझ सकता हूँ, NRC तो साल में एक आध बार जब अपॉइंटमेंट चाहिए, तो इज इट मैंडेटरी? एक काम करो, पेज 148 पढ़ के देखो. ऐसा लिखा है लिस्टेड है तो करना पड़ेगा, अनलिस्टेड है तो. लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो मैंडेटरी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो थ्रेशोल्ड लिमिट्स दी है. देखो, अगर वो कंपनी थ्रेशोल्ड लिमिट्स को सेटिस्फाई करती है तो मैंडेटरी है. क्लियर? सो इसका आंसर एक्चुअली पेज 148 पे है. Okay, it is mandatory to have NRC if threshold limits is satisfied. सो अगर थ्रेशोल्ड लिमिट सेटिस्फाइड है तो एनआरसी रखना जरूरी है. ओके, फाइन. नेक्स्ट वन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैव नो प्लेस इन एनआरसी. Do you agree? Executive directors have no place in NRC. पढ़ो, देखो. एग्जैक्टली, एनआरसी के सारे मेंबर्स नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं. उनका मेन पर्पस यही होता है कि वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को अपॉइंट करे. ओके, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद. ठीक है, सो हाँ, अगर वो अलग से आके बैठना चाहे एज अ मेंबर एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन तो बैठ सकता है, लेकिन मुझे जो मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो सारी की सारी नॉन एग्जीक्यूटिव्स चाहिए. ओके, सो यहाँ पे पेज 148 पे द आंसर इज यस, ऑल मेंबर्स are non-executive directors. Okay, so all the members are non-executive directors of the company. ठीक है, let's say if chairperson of NRC is not present, if chairperson of NRC is not present in 5 minutes
in 5 minutes, then any person can be chairperson of NRC. Okay, correct, incorrect. So if the chairperson of NRC is not present in 5 minutes, then any person can be the chairperson of NRC. क्या हुआ? मेंबर्स अपने आप को इलेक्ट कर लेंगे. बताओ 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 बताओ. टेबल एफ में पढ़ रहे हो? Independent director. So the answer is yes, members may elect one amongst themselves, but only independent director can be the chairperson of NRC. Okay? Yes, members will elect one amongst themselves, but only independent director can be the chairperson, not any person. Okay? वो कहाँ लिखा है? पेज 148 पे ही लिखा हुआ है. Only independent director can be chairperson of NRC. मिला? Can be chairperson of NRC, not any person, and members may elect ID in absence of chairperson in C meeting. Okay, so इसमें टेबल एफ भी यूज करना है, उसके साथ साथ दूसरा पार्ट भी. So only independent directors can be chairperson of NRC, not any person, and members may elect a independent director in the absence of chairperson of NRC. Got it? Because generally हम लोग वही लिखते हैं, one amongst themselves will be elected. Okay. Another situation is chairperson of NRC refuses to continue with meeting, till all members are present. Is this decision valid? क्या लिखा है उधर?
अरे चेयरपर्सन तो प्रेजेंट है, क्वेश्चन बोल रहा है, चेयरपर्सन बोल रहा है जब तक बाकी के लोग नहीं आते हम मीटिंग शुरू नहीं करते, क्योंकि फिर वैसे भी लोग तो गिनती गई है हमारे उधर। तो यू करेक्ट कि अगर कोरम प्रेजेंट है ना सर, तो आप मीटिंग शुरू कर सकते हो। अब सबके यानी वर्ड ऑल के लिए रुकने की जरूरत नहीं है। ओके, कोरम प्रेजेंट है ना तो आप शुरू कर सकते हो। सो दिस इज इम्प्रॉपर। This is improper. If quorum of NRC is present, comma, the meeting can be conducted. Correct. So if the quorum is present, yes, the meeting can be conducted. ठीक है। Next is NRC has selected a person for senior management position. For senior management position. So NRC has selected a person for senior management position, but board of directors are not satisfied with selection. Okay, advise NRC. So NRC has selected a person for senior management position, but board of directors are not satisfied with selection. Advise NRC. हाँ मतलब रेकमेंड से पहले उन्होंने आउट ऑफ ऑल द रिज्यूमेस की एक को सिलेक्ट करना होगा ना, दैट इज आइडेंटिफिकेशन के तौर पे। अच्छा, आपको सिलेक्शन वर्ड से मतलब है, सो दे हैव लेट्स से आइडेंटिफाइड, they have identified a person for senior management position. Out of all the resumes, they finalize them. Okay, this chap can be put before the board. So, board of directors के सामने गया, but they are not satisfied. This person does not deserve here. We are looking for something better. What to do now? सर एनआरसी का चेयरपर्सन आपसे बोल रहा है सीएस अभी क्या करे? बोर्ड का डिसीजन, बोर्ड में तो बाकी सब तो बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं सर ये क्या ढूंढ के लाए हो। हाँ वो आता है, पर ये तो सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पे, he is not a director. Identify another person. As a CS, your suggestion is this. सर अभी कुछ कर नहीं सकते, एक काम करो कोई दूसरा ढूंढ लो। ये नहीं वो और सही, और नहीं कोई और सही।
But the answer is yes. The NRC has to identify another person. Okay, if the board is not satisfied and is not approving the name given. But that's how actually आप वही आंसर है. बस ये है कि आप उसको कम्युनिकेट कैसे करोगे प्रैक्टिकल लाइफ में, वो देखना होगा. Okay, so it's not easy to say yes or no is sometime. So NRC has to identify another person for the position as delegated to NRC by Board of Directors. Correct? So Board of Directors ने उनको जो delegation किया था, उस delegation के हिसाब से they have to find out the another person for this purpose. ठीक है? Another situation, एक कंपनी में ऐसा हुआ कि as per general practice the performance evaluation and appraisal policy was formed by company secretary and approved by managing director without consulting NRC. Okay, is it healthy practice? Okay, so MD बोलता है NRC के पास भेजो, वो इतनी देर तक रिव्यू करेगा. तो एक प्रैक्टिस थी, MD खुद ही उसको चेक कर लेता था, CS को चेंजेस बोलता था, CS पॉलिसी बना के रेडी करके उसके हिसाब से इंप्लीमेंट करना शुरू होता था. दैट इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन अप्रेजल. अब सवाल ये है कि NRC को कंसल्टेशन तक में लिया नहीं जाता है. It's a wastage of time to send to them. They will review, they will give opinion, then it goes back to CS, then it goes back to the MD, because जब तक MD हाँ नहीं बोलेगा तब तक पॉलिसी नहीं कंफर्म होगी. So they cut out the process. Quickly खत्म हो जाएगा. लेकिन अब एज अ CS आपके सामने एक क्वेश्चन आया है कि क्या ये प्रैक्टिस हेल्दीली, मतलब यही प्रैक्टिस सही है या कुछ गड़बड़ है. ओके, NRC के मेन फंक्शंस में से एक फंक्शन है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन फंक्शन. एज अ रिजल्ट उस फंक्शन के हिसाब से अगर NRC अपना परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन नहीं कर रहा है तो फिर MD किसी भी जन का कोई भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पॉलिसी अप्रूव नहीं करेगा. ओके, क्योंकि ये बात सेबी की तरफ से भी क्लियर्ड है. ओके, और एक सैट के जजमेंट में भी आया था कि जो कमिटी स्टैट्यूटरीली बनाई जाती है उसको अपने स्टैट्यूट रिक्वायरमेंट फंक्शनैलिटीज को कंप्लीट करना होता है. उसमें कोई भी डायरेक्टर्स इंटरफेयर नहीं करेगा. अगर करेगा तो बोर्ड में अपने रीजंस असाइन करेगा. सैट का वो जजमेंट भी था कि स्टैट्यूटरी कमिटीज को स्टैट्यूटरी फंक्शनल्स जो दिए गए वो उन्हें परफॉर्म करने चाहिए. ठीक है, सो उसी के हिसाब से इसलिए मेरे को ये जजमेंट क्लिक हुआ. तो दिस इज नॉट
healthy practice, and performance evaluation. क्या? roles and functions, schedule to rule D, sorry, scheduled roles and functions of NRC देखो. लिखा है? लिखा है कि नहीं? लिखा है ना? तो परफॉर्मेंस का पूरा काम एनआरसी के पास होता है अगर कंपनी में एनआरसी है तो. क्लियर? चलो, अब ये कभी कभी ऐसा होता है कि एनआरसी वाले अगर तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे हैं तो कभी कभी ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं. वो वाला क्वेश्चन बताता हूं. एनआरसी wants to know what disclosures company secretary requires to make in board's report about remuneration policy. Got it? ये कभी कभी आपसे पूछते हैं कि रेम्यूनरेशन पॉलिसी के हिसाब से ऐसे क्या डिस्क्लोजर्स हैं जो करने पड़ जाते हैं इन द बोर्ड्स रिपोर्ट. ये आपको 149 150 के उसमें मिल जाएगा. 149 150, 149 एंड 150 स्टार्ट या ऐसे के आसपास में मिलेगा. यस, मिला. सो याद रखना कि वो फंक्शनैलिटी दिए हुए हैं ऑलरेडी. तो इसका मतलब एनआरसी का, सरप्राइजिंगली बट दैट्स ट्रू, काफी सारा काम एज अ कंपनी सेक्रेटरी आप ही के गले में आता है. ओके या यूं बोलूं, बोर्ड कमिटीज का काफी सारा काम आपके गले में आता है. दूसरी चीज, अगर आप कंपनी के सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो आपका बॉस बोर्ड कमिटीज में सिर्फ ऑडिट कमिटी पे ध्यान देता है, बाकी ये सारी कमिटीज वो जूनियर में पास कर देता है. सारी कमिटीज, एसआरसी, एनआरसी, सब आपके पास. ठीक है. नन डन डन डन. ठीक है. एक और सिचुएशन एनआरसी में बन सकती थी, याद आती है. इन स्पाइट ऑफ एक्सपायरी ऑफ टर्म of independent director, NRC feels there is no need to appoint or reappoint independent directors. Is it deficiency in
functions of NRC. So should I consider it as a deficiency in the functions of NRC? और ये मिनिमम लिमिट की रिक्वायरमेंट कहाँ पे लिखी हुई है? सो एग्जैक्टली ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही है तो चलेगा. ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स दो जगह पे है, सेक्शन 149 एंड रेगुलेशन 17 ऑफ सेवी एडोडिया. इन दो जगह पे अगर थ्रेशोल्ड लिमिट्स यानी मिनिमम रिक्वायर, मतलब 17 बोलता है अगर आपके पास जितना एग्जीक्यूटिव है उतना नॉन एग्जीक्यूटिव चाहिए, जिसमें से अगर आपका, फिर वो आते हैं चेयरपर्सन पे, तो अगर आपका चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव है तो आप 1/3 कर सकते हो, नहीं तो ऑल गिवन सिचुएशन इट हैज टू बी 50-50. यानी जितने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स उतने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए. सो इट इज ऑलवेज द बैलेंसिंग रूट. मेजॉरिटी लिस्टेड कंपनीज, जब आप NSE 50 देखते हो या BSE 100 पे, दे ऑलवेज हैव 1 or 2 मोर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ऑलवेज हैव. So if there are 7 independent directors and one of them is going, NRC says, I don't feel the need to appoint a new one right now. It's fine. It's fine. We still have more. Clear? Because बड़ी listed company definitely आपने देखना, सारे उस पे listed company पे जाके check करना मिलेगा. They always keep one more independent director. Okay? Because कभी quorum के लिए, कभी meeting के लिए कौन किधर है can be arranged. ठीक है? So इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से where company meets requirements of section 149 and regulation 17, then NRC may not identify independent director for board of directors. So when the company meets the requirement, NRC may not identify independent directors for the board of directors.